We are doing chapter tropical and subtropical regions. In this chapter, you have read about Amazon basin. ये देखो आपको Amazon basin दिख रहा होगा. It is in South America and towards the north part of the South America. First of all, तो ये याद रखो. And it lies between 10 degree north and 10 degrees south of equator. 10 degree north and 10 degrees south of equator. Is it clear? So this basin lies in South America. South America is a continent. 10 degree north lies between 10 degree north and 10 degrees south of equator. So it is also known as equatorial region. As you have read, equatorial region है. So river Amazon flows through this region. River Amazon जो है that starts from the, आप इस साइड से कहोगे, river Amazon starts from the western side, from the mountainous areas and then flows to the Atlantic Ocean. Atlantic में आ जाती है river. River Amazon flows from the mountainous region of the west and then falls into Atlantic Ocean. So this region has, अगर आपसे climate पूछा जाए location तो आपको पता चलेगी. अगर climate पूछा जाए तो you will write as it is known as equatorial region. It is near the equator, so it has hot and wet climate. आप कहोगे days and nights are hot with high rate of humidity. Humid and आप कहोगे hot and humid होते हैं days and nights. Days are hot and humid, whereas in nights temperature जो है that goes down, but humidity remains high during night also. जो humidity है वो night में भी high रहती है. No doubt temperature जो है night को वो down चला जाता है. So this is about the climate. First of all, I have repeated the topic location of Amazon basin. Location आपको याद रखनी है, आपको location map से ही करनी है. No need to cram. ठीक है, South America में है. Between 10 degree north and 10 degree south of equator है, equatorial region है. River Amazon flows through this region. Western part से start होके eastern part Pacific Ocean में आके गिर जाती है. तो इस वे से आप इसकी सारी लोकेशन बताओगे. ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल रीजन है तो क्लाइमेट भी आपको इजी रहेगा, हॉट एंड वेट. एंड डेज जो है वो हॉट है, डेज एंड नाइट्स आर हॉट एंड ह्यूमिड. डेज में क्या होता है, ज्यादा गर्मी होती है विद हाई रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, वेयरएज आप नाइट्स में बोलोगे टेम्परेचर जो है दैट गोज डाउन, एंड इन नाइट्स टेम्परेचर गोज डाउन, बट टेम्परेचर डाउन चला जाता है, बट ह्यूमिडिटी जो है दैट रिमेन्स हाई ड्यूरिंग नाइट आल्सो. इज इट क्लियर? तो इस वजह से आप क्लाइमेट के बारे में बताओगे. एंड इट गेट्स हैवी रेनफॉल डेली. यहाँ पे रोज बारिश होती है. एक आप ये भी बताओगे. दिस इज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ Amazon बेसिन. तो वेजिटेशन, अब वेजिटेशन कैसी है, रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे. दिस एरिया Amazon बेसिन हैज रेन फॉरेस्ट. एज इट गेट्स रेनफॉल डेली, तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests remain green throughout the year. Your trees do not shed their leaves at the same time. These are very dense forests. Sunlight cannot reach the ground. बहुत dense forest है, sunlight ground तक नहीं पहुंच पाती. So this is about the forest. Different kinds of, आप कहोगे कि people can grow different kinds of crops. यहाँ पे cash crops भी grow होती हैं, cocoa, coffee, maize. And cassava is the main food of the people of Amazon basin. Just like potato की तरह होता है, cassava is the main food, the staple food of the people of Amazon basin. Next आप बताओगे कि यहाँ के जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, आप बताओगे different kinds of birds हैं, animals हैं, and reptiles. यहाँ पे आप anaconda भी कह सकते हो, python, ये सब तरह के snakes वहाँ पे पाए जाते हैं. फिर वहां पे पिरहाना फिश है इन द Amazon रिवर. और ये रिवर क्यों हम कहेंगे कि इसकी क्या हम कहेंगे कि क्यों ये डिफरेंट तरह की फिश है. इट इज अ फ्लैश ईटिंग फिश. ये फ्लैश खाती है. पिरहाना फिश, पिरहाना फिश जो है दैट इज फाउंड इन द Amazon रिवर एंड इट इज अ फ्लैश ईटिंग फिश.
तो इस वे से आप यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बताओगे। यहाँ पे ब्रोमीलियड्स आर स्पेशल प्लांट्स, वो भी पाए जाते हैं इन दिस बेसिन। ब्रोमीलियड्स आर द स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर। ब्रोमीलियड्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. ब्रोमीलियड्स एक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर को, जिनके लीव्स वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं। एंड दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर आर यूज्ड बाय फ्रॉग्स टू ले देयर एग्स। ब्रोमीलियड्स स्पेशल प्लांट्स हैं, देयर लीव्स स्टोर वाटर, पॉकेट फॉर्म की तरह हो जाते हैं ये लीव्स, एंड दीज आर यूज्ड बाय फ्रॉग्स टू ले देयर एग्स। तो दिस इज अबाउट द आप कहोगे कि वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ अमेज़न बेसिन। नो कम टू द पीपल, लोग कैसे हैं वहाँ पे। यहाँ की जो वुमेन है ना, वो क्रॉप्स की केयर करती है। मेन जो है वो हंटिंग एंड फिशिंग में इन्वॉल्व है। तो वुमेन प्लांट्स की, क्रॉप्स की केयर करती है, ठीक है। फिर कैश क्रॉप्स मार्केट में बेचते हैं ये लोग, ठीक। अब ये जो लोग हैं, इनके घरों की जो रूफ्स हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, स्टीपी स्लैंटिंग रूफ्स, जिन्हें कहते हैं मलुका। स्टीपली स्लैंटिंग रूफ्स जिसे कहते हैं मलुका, बिकॉज दिस एरिया अमेज़न बेसिन गेट हाई रेनफॉल डेली। तो यहाँ की रूफ्स जो हैं स्टीपली स्लैंटिंग है, ताकि इनकी रूफ्स पे पानी खड़ा ना हो सके। स्टीपली स्लैंटिंग रूफ्स हैं, इनको कहते हैं मलुका। अब अमेज़न बेसिन के लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टाइम। अब लोगों की लाइफ, अर्लियर हम कहेंगे कि ट्राइबल थे, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फॉलो करते थे। नो, वेरियस चेंजेस अकर्ड इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दिस बेसिन। अर्लियर इनका मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन था ना, दैट वाज बाय नेविगेशन थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट वाज द मेन, आप कहोगे कि ये यूज करते थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बट आज की डेट में 1970 यहाँ पे ट्रांस अमेज़न हाईवे बन चुकी है। ट्रांस अमेज़न हाईवे, इट वाज बिल्ट इन 1970। अर्लियर इनका मेन जो ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स था ना, दैट वाज वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू नेविगेशन। बट इन 1970 ट्रांस, आप कहोगे यहाँ पे ट्रांस अमेज़न हाईवे बन चुकी है। ट्रांस अमेज़न हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट असेसिबल। अब किसी भी पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना इजी हो गया। एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस टू द अमेज़न बेसिन। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो चुकी है यहाँ पे। अब जो लोग हैं ना वहाँ के इंडिजिनियस पीपल, उन्हें फॉरेस्ट एरियाज में से निकाल दिया गया एंड नई नई जगहों पे दे वर सेटल्ड, और उन्हें वहां पे उनकी फार्मिंग जो वो यूज करते थे, दे वर अलाउड टू यूज द सेम मेथड्स ऑफ द फार्मिंग। तो अमेज़न बेसिन के लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है किसके आने से? ट्रांस अमेज़न हाईवे। कौन से ईयर में आई ट्रांस अमेज़न हाईवे? 1970। This made the people to go to the different parts of this basin. Helicopters, अब through helicopters भी ये लोग, aircrafts through helicopters, these people can go from one part to another. The development activities, अब वहाँ पे बहुत changes आए। डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए इन डिफरेंट एरियाज, तो दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, क्योंकि लोगों ने, पीपल ऑफ अमेज़न बेसिन cleared the forest areas to build their houses. So this led to the destruction of rain forest. कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज डिप्लीट होने शुरू हो गए हैं। ट्रांस अमेज़न हाईवे भी जो बनी है, दैट इज मेड बाय क्लियरिंग द रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करके उन्होंने रोड बनाई है। तो इट मीन्स फॉरेस्ट एरियाज वहां पे क्या होते जा रहे हैं? डे बाय डे डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। And it is estimated that large area of rainforest has been disappearing
एनुअली इन द अमेज़न बेसिन। आप सोचो कि जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी फॉरेस्ट एरियाज डिप्लीट होते जाएंगे। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज ग्रेट इम्पैक्ट। अब टॉप सॉइल जो है ना दैट इज वॉश्ड अवे एज अ रेन फॉल्स एंड लैंड धीरे धीरे बैरन होती जा रही है, क्योंकि टॉप सॉइल क्या होती जा रही है ड्यू टू कमिंग ऑफ रेन, क्योंकि वहां पे रेनफॉल डेली होती है। Topsoil washed away due to this topsoil washed away and land of Amazon basin is becoming barren. Barren होती जा रही है क्योंकि topsoil washed away with the coming of rain and land of Amazon basin is becoming barren. तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस बेसिन। अब इसमें हम कहेंगे कि गुड इम्पैक्ट क्या पड़ा, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी होगी वहां पे। अर्लियर द मेन सोर्स ऑफ, आप कहोगे कि इधर से उधर अगर लोगों को जाना होता था तो दे यूज वाटर ट्रांसपोर्ट, तो लाइफ इजी नहीं थी उनकी, ठीक है, वहां के लोगों की लाइफ वाज नॉट इजी। बट चेंजेस आने से ट्रांस अमेज़न हाईवे बनी जब, तो दिस मेड पीपल टू गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स के कारण भी इट becomes easy to go to any part of the Amazon basin. But all these developmental activities, as people now settled in the new areas, they have to leave the forest areas, नई जगहों पे सेटअप हो गए, नई नई एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो गए, तो उनके पास लैंड कहाँ से आई, दे क्लियर द फॉरेस्ट एरियाज। तो न्यू डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो थी लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट। जो रोडवेज भी बनी वो भी आफ्टर डिप्लीटिंग द फॉरेस्ट एरियाज ही बनी। तो फॉरेस्ट एरियाज डिप्लीट होते जा रहे हैं एंड टॉप सॉइल रेनफॉल तो वहां पे डेली आ रही है, तो दिस लेड टू द वास्ट अवे ऑफ टॉप सॉइल एंड द लैंड ऑफ अमेज़न बेसिन इज बिकमिंग बैरन। सो दिस इज अबाउट अमेज़न बेसिन। अब एक मिनट, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रेड अबाउट लोकेशन। लोकेशन में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हैंड्स अप करेगा। नेक्स्ट क्लाइमेट, आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए राइट द क्लाइमेट ऑफ अमेज़न बेसिन, तो आप अपने आप बता सकते हो, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में है तो हॉट एंड वेट। अब हॉट एंड वेट का तो रेनफॉल डेली है, अब मैं कह रही हूँ रेनफॉल डेली है तो फॉरेस्ट कैसे है, वेजिटेशन कैसी है, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट यू हैव रेड एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेम फीचर्स हैं, रेन फॉरेस्ट है। और वहां पे कैसे आप बताओगे कि वाइल्ड लाइफ कैसी है, हर तरह की आप बताओगे, वहां पे पाइथन्स, एनाकोंडा, हर तरह के। अब डिफरेंट डिफरेंट आप बताओगे वैरायटीज ऑफ रेप्टाइल्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, हर तरह के एनिमल्स वहां पे, बर्ड्स सब पाए जाते हैं वहां पे अमेज़न बेसिन में, ठीक है। फिर आप बताओगे कि यहाँ पे जो वुमेन है वो क्रॉप्स की केयर करती हैं, ठीक है, वहां पे कैश क्रॉप्स भी ग्रो होती हैं, कसावा उनका स्टेपल फूड है। फिर आप बताओगे मैन जो है अभी भी हंटिंग एंड फिशिंग में इन्वॉल्व है, तो वो कई बार अनसर्टन भी होता है, तो ये लोग मोस्टली क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक। फिर आप बताओगे कि अब ये जो लोग हैं दे फॉलोड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बट नो देयर लाइफस्टाइल इज चेंजिंग। अब इनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। अर्लियर इनका मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था दैट वाज वाटर ट्रांसपोर्ट, बट ट्रांस अमेज़न हाईवे बनने से इट बिकम्स इजी टू गो टू एनी पार्ट ऑफ दिस बेसिन। और फिर साथ में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, मेड, ऑल पार्ट्स असेसिबल, किसी भी पार्ट में जाया जा सकता है थ्रू एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ये लोग अब इन्वॉल्व हैं। तो अब जितनी एक्टिविटीज होंगी, सड़कें बनेंगी, सब कुछ बनेगा, तो क्या क्लियर होते जाएंगे, फॉरेस्ट एरियाज आर डिप्लीटिंग डे बाय डे। अब फॉरेस्ट एरियाज डिप्लीट होंगे तो टॉप सॉइल वाश्ड अवे एज द रेनफॉल इज कमिंग डेली and land is becoming barren. So this is about Amazon basin. I think whole chapter is clear to you. Amazon किसका नाम है, रिवर Amazon। अब ये रिवर Amazon who explored, किन्होंने इसको एक्सप्लोर, स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। Spanish explorers discovered Amazon River. Amazon River was discovered by Spanish explorers. तो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स जब इस रीजन में गए ना तो उन्हें ये रिवर मिली। अब वहां पे उनको जो ट्राइबल पीपल मिले ना, उन्होंने पहनी हुई थी लीव्स की स्कर्ट्स एंड हेड गियर्स।
स्कर्ट्स एंड हेडगियर्स, लीव्स की, ट्राइबल पीपल जो उनको वहां पे मिले। तो जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे ना, उन्होंने ऐसे वाले ट्राइबल लोग, ऐसे वाली ट्राइब्स ऑफ वुमेन देखे थे, वुमेन वॉरियर्स के, रोमन, एंशियंट रोमन एम्पायर में। एंशियंट रोमन एम्पायर में उन्होंने ऐसे वाले ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स कहाँ पे देखे थे उन्होंने? एंशियंट रोमन एम्पायर में, और जिसे कि कहा जाता है अमेज़न। तो उन्होंने उसी का नाम रख दिया अमेज़न, एंशियंट रोमन एम्पायर एज द अमेज़न। तो उसी से इनका नाम क्या रख दिया उन्होंने? अमेज़न। नो, इज इट क्लियर? स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को जब ये रिवर मिली तो उनको वहां पे कुछ ट्राइबल लोग जो मिले ना, उन्होंने क्या पहने हुए थे? स्कर्ट्स ऑफ लीव्स एंड हेडगियर्स। और ये उनको किन लोगों की इनको याद आई इनको देख के? उन्होंने ऐसे ट्राइबल लोग देखे थे, वुमेन ट्राइबल देखी थी, वुमेन ट्राइबल वॉरियर्स। कहाँ पे? रोमन एम्पायर में, जिसे कि अमेज़न कहते थे। तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया फिर? अमेज़न। तो ये अमेज़न नाम किसने रखा है? स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने इसका नाम रखा अमेज़न, बिकॉज रिवर अमेज़न वाज एक्सप्लोर्ड बाय स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। ठीक है, तो अब टॉपिक अमेज़न बेसिन इज क्लियर। अब आप आ जाओ सब ट्रॉपिकल। यू हैव रेड अबाउट ट्रॉपिकल रीजन, नो कम टू सब ट्रॉपिकल रीजन, एंड दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन, एंड इट इज इन इंडिया। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो कॉन्टिनेंट ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन है, और ये कौन सी कंट्री में है? इंडिया। कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सो लर्न इट। एशिया में सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, एंड इट इज in India, drained by 2 rivers. This basin is drained by one river, that is Amazon River, and its tributaries. But this basin is drained by 2 rivers, Ganga and Brahmaputra, and their tributaries. Ganga Brahmaputra basin is drained by river Ganga and Brahmaputra and their tributaries. Amazon basin drained by Amazon river and its tributaries. Ganga Brahmaputra basin drained by river Ganga and Brahmaputra and its tributaries. तो बेसिन मैंने अभी कल ही बताया था. What do you mean by basin? Area drained by river or its tributaries is known as basin. हम गंगा बेसिन में नहीं रहते ही, आपको पता है ना तो हम गंगा, हमारे यहाँ पे 3 बेसिन्स हैं. एक सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन, फिर ब्रह्मपुत्रा बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, सतलुज, फिर हम कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. ठीक, हम कौन से बेसिन में रहते हैं? वी आर लिविंग इन सतलुज बेसिन. हम सतलुज बेसिन में रहते हैं. और सतलुज बेसिन जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी ब्यास है. आप अमृतसर जाते हो तो ब्यास आता है रास्ते में, लुधियाना की तरफ जाते हो तो सतलुज आता है. तो हम यहाँ पे रहते हैं. हम गंगा बेसिन में तो नहीं ना रहते, हम नहीं रहते. यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, गंगा हरिद्वार से एंटर करती है, पता है आपको? हरिद्वार से एंटर होके फिर उधर जाती है ईस्ट वाली साइड. हरिद्वार से एंट्री होती है गंगा की. फिर गंगा यहाँ पे जब बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है. एंड बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, बोथ रिवर्स दोनों ही क्या बनाती हैं? लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज नोन एज Sundarbans Delta. Sundarbans Delta is formed by which 2 rivers? Ganga and Brahmaputra. Ganga and Brahmaputra rivers before falling into Bay of Bengal. कौन सी रिवर में गिरती हैं? Bay of Sea में, सॉरी, Bay of Bengal. Before falling into Bay of Bengal, these 2 rivers form the largest delta in the world, and that is known as Sundarbans Delta. ठीक है.
तो व्हाट इज डेल्टा? ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर। ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर। तो सुंदरबंस डेल्टा बनाती हैं। सुंदरबंस नाम क्यों पड़ा? वहां पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। विच ट्रीज? सुंदरी। वहां की जो वेजिटेशन है ना, वहां पे जो मेन ट्रीज है ना इस एरिया में, उनको कहते हैं सुंदरी ट्रीज। तो इसका नाम पड़ गया सुंदरबंस डेल्टा। अमेज़न बेसिन जो है ना, अमेज़न रिवर है ना, जो दैट फॉल्स इनटू अटलांटिक ओशन, स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न माउंटेन्स। वो वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन से स्टार्ट होके ईस्ट की तरफ आके अटलांटिक ओशन में ये गिर जाती है। वेयर एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ये बे ऑफ बंगाल सी में, ये ओशन में गिरती है, वो सी में। विच सी? बे ऑफ बंगाल। एंड बिफोर फॉलिंग इनटू सी, both the rivers make largest delta in the world। अब डेल्टा आपको याद रखना है। विच डेल्टा? सुंदरबंस डेल्टा। Why it is known as सुंदरबंस? Because सुंदरी trees are found। डेल्टा होता क्या है? ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड नियर द माउथ ऑफ द रिवर। और वर्ल्ड का, मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, कल को इंडिया का सोच के बैठे हो। Largest delta in the world, that is Sundarbans। Which two rivers form this delta? Ganga and Brahmaputra। Now is it clear? अब आपको मैं फिर बोलती हूँ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, if you are having any problem regarding Amazon basin तो you can ask। अब मैं फिर बोलती हूँ, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, it is formed by two rivers। Which two rivers form the Ganga Brahmaputra basin? Ganga and Brahmaputra। फिर हम बताएंगे कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड टू 30 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ में ही है, ये साउथ की तरफ नहीं है। इधर हम कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। इधर हम कहेंगे 10 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होके 30 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है ये एंड 30 डिग्री नॉर्थ तक ये एरिया नॉर्थ में ही है ये। This is a subtropical region situated between 10 degree north to 30 degree north। Amazon में आप बताते हो 10 degree north to 10 degree south। It lies between 10 degree north, 10 degree south of the equator। इधर आप बताओगे it is a subtropical region situated between 10 degree north to 30 degree north। तो ये subtropical region है। Is it clear? अब drained by river Ganga and its tributaries। पहले मैं गंगा की tributaries बोलती हूँ। You have to learn the name of the tributaries of Ganga। अब वो what is tributary? When small river join the big river, तो उसको कहते हैं tributary, branches of river। अब गंगा की branches कौन कौन सी हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। You have to learn the tributaries of river Ganga। No, which are the main tributaries of river Ganga? Ghagra, Son, Chambal, Kosi, Gandak। और एक बात और बताऊं, here name is not given। यमुना, यमुना is the main tributary of Ganga। यमुना जो है ना वो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। Their name is not given। उन्होंने छोटी वाली ट्रिब्यूटरीज, जैसे मैं बोलूं सतलुज की मेन ट्रिब्यूटरी ब्यास है, तो यहाँ पे अगर हम कहें तो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है ना, दैट इज यमुना। दिल्ली आप पढ़ चुके हो ना, दिल्ली में यमुना रिवर। तो गंगा रिवर जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। अब ग्लेशियर क्या होता है? स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, धीरे धीरे चलने वाली आइस की रिवर्स जिसमें बर्फ जमी रहती है। Now, what is glacier? Slow moving rivers of ice are known as glacier। और गंगा कहाँ से स्टार्ट हुई? हिमालयन रिवर है ये। आपको पता है दोनों ही हिमालयन रिवर्स हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं? जिनमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता। अगर हम साउथ इंडिया में रिवर्स की बात करें तो पानी खत्म हो जाता है, डिपेंड अपॉन रेन होती है। साउथ इंडियन रिवर्स रेन फेड है। ये वाली दोनों रिवर्स स्नो फेड है। स्नो फेड मीन्स इन्हें पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं और इनमें पानी कभी भी खत्म नहीं होता, तो इन्हें हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। साउथ इंडिया की रिवर्स को हम कहते हैं स्नो फेड रिवर्स।
उनमें पानी खत्म हो सकता है, उनमें कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, रेनफॉल डिपेंड अपॉन रेन होती है ना, अगर रेनफॉल ज्यादा आ जाए तो फ्लड्स आते हैं, रेनफॉल ना हो तो ड्रॉट्स आते हैं। ये वाली रिवर्स पेरेनियल रिवर्स हैं, इनमें वाटर की कमी नहीं होती। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों ही हिमालयन रिवर्स है। गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, एंटर्स इंडिया एट हरिद्वार। गंगा कहाँ पे एंटर होती है आके? हरिद्वार में गंगा की एंट्री होती है। हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में हरिद्वार में से एंट्री होती है। और गंगा की जैसे गंगा आगे फ्लो करती है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज में कितनी ब्रांचेस में वो बच जाती है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने अभी पढ़ी हैं, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, चंबल, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? रिवर गंगा की। एंड ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर असम वाली साइड से होके बांग्लादेश में आके गिर एंटर होके फिर कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल। ठीक, असम वाली साइड से इसकी एंट्री होती है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश एंड देन बे ऑफ बंगाल में, ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर होके असम एंड देन बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री होती है, आप कहोगे, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। एंड किसको मीट करती है गिरने से पहले? गंगा रिवर को। और दोनों मिलके क्या बनाती हैं? लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, इतना भी क्लियर? गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज क्लियर? गंगा रिवर कहाँ से स्टार्ट हुई? गंगोत्री ग्लेशियर। अब प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड फुटहिल्स of the Himalayas, Sundarbans Delta are the main feature of this basin। मैंने पहले बता दिया इस बेसिन के मेन फीचर्स क्या है। पहले तो प्लेन्स, गंगा ये प्लेन्स हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे किस में आते हैं? प्लेन्स। ये प्लेन्स हैं। सबसे हम कहेंगे ना कि आप कहोगे ना कि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इन प्लेन्स में, गंगा प्लेन्स, ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। तो प्लेन्स, और इसके फीचर्स क्या है? हिमालयन, बिकॉज हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, हिमालयन रिवर है। और इसका फीचर क्या है? सुंदरबन, क्योंकि ये डेल्टा बनाती है। विच डेल्टा? सुंदरबन। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस, आप कहोगे इसके इस बेसिन के मेन फीचर्स हैं। विच बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र का मेन बेसिन के फीचर्स बताओ। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे प्लेन्स भी पाए जाते हैं, विच आर डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स। ठीक है, और यहाँ पे और क्या पाया जाता है? ये हिमालयन रिवर्स है, ठीक है, पेरेनियल रिवर्स है, और साथ में सुंदरबंस। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। विच बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। Oxbow lakes dot the plain areas. The area is dominated by monsoon climate. Monsoon bring rains from mid-June to mid-September. Summers are hot and winters are cool. अब क्लाइमेट ऑफ दिस बेसिन, समर्स आर, तो बच्चे हम यहीं पे इन एरियाज में तो रहते हैं। हमारा यहाँ पे समर्स क्या है? हॉट। विंटर्स क्या है? कूल। समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कूल। हमने अपना ही क्लाइमेट बताना है। और रेनफॉल कब आती है? आपको पता है, जुलाई टू सितंबर, यू नो इट वेरी वेल। तो यहाँ का क्लाइमेट जब आपने बताना है तो आपने अपना क्लाइमेट दिमाग में लाना है। ठीक है, इन एरियाज में एक्सट्रीम क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? एक्सट्रीम। Hot in summers, cold in winters, and gets rainfall in the months of, कौन से months? आप बताओ, जून टू सितंबर। दिस एरिया गेट रेनफॉल, ये वाले जो प्लेन्स हैं, गेट रेनफॉल इन द मिड ऑफ जून टू सितंबर। नो, इज इट क्लियर? यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? यहाँ की पहले तो लोकेशन, कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। कौन सी कंट्री है? इंडिया। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री है, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। इज इट क्लियर? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक, अब साथ में आप बताओगे सब ट्रॉपिकल रीजन है, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक है ये। फिर आप बताओगे ड्रेन्ड बाय 2 रिवर्स, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। फिर फीचर्स क्या है इसके, इस बेसिन के? विच आर द मेन फीचर्स? सबसे पहले तो प्लेन्स, फिर सुंदरबन डेल्टा एंड देन हिमालय। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं इस बेसिन के। फिर आप बताओगे
कि गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज क्या है। फिर कैसा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। उधर आपने कहा हॉट एंड वेट क्लाइमेट, इधर आप कहोगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो समर्स कैसी हैं, हॉट, विंटर्स कैसी हैं, कोल्ड, गेट रेनफॉल इन द मिड ऑफ जून टू सितंबर। मिड ऑफ जून से रेनफॉल स्टार्ट होती है, सितंबर तक चलती है। तो इट मींस यहाँ का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और हॉट इन समर्स है, कोल्ड इन विंटर्स है, ठीक है। तो क्लाइमेट आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका अपने ही स्टेट का क्लाइमेट है। अब आपको यहाँ पे स्टेट्स ढूंढनी है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, अपने आप देखो कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी। यहाँ पे बिहार भी आ रही है, उत्तर प्रदेश भी आ रही है। यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट्स एंड सिटीज आल्सो, आपको सिटीज भी ढूंढनी है, ठीक है।